جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے بلکہ مال کو سینت کر رکھتے ہیں، کل وہ مال ان کا جو ہے وہ ایک گنجے سانپ کی صورت میں آئے گا اور اس کو ڈستا رہے گا، آج کی ملاقات کے اس شمارے میں آپ سب کا استقبال ہے۔ ناظرین، اس شمارے میں ہم نے دعوت دی ہے جموں کشمیر یتیم ٹرسٹ کے چیئرمین ظہور احمد طاق صاحب کو۔ ہم ان سے بات کریں گے اور ان سے جانیں گے کہ ان کا جو کنٹریبیوشن رہا ہے سوسائٹی پہ کافی زیادہ ہے۔ ان سے جانیں گے ان کا جو رمضان کے ریلیٹڈ یتیم ٹرسٹ فاؤنڈیشن میں جو یہ کام کرتے ہیں، انہوں نے کتنے سارے کار انجام دی ہے، اس بارے میں ان سے بات کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ کا بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے۔ جزاک اللہ۔ ظہور صاحب، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار ذکر کیا ہے، لوگوں سے کہا ہے کہ اگر آپ نمازیں پڑھتے ہو، روزہ رکھتے ہو یا زکوٰۃ دیتے ہو تو ساتھ ساتھ میں یتیموں کا بھی خیال رکھنا۔ اس بارے میں آپ تھوڑا بتائیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے 14 سورتوں میں 23 مرتبہ یتیموں کا تذکرہ کیا ہے، اور ہر جگہ یتیم کی کسی نہ کسی ضرورت کو اجاگر کیا ہے۔ یہ ظاہر بات ہے کہ یتیم ایک ایسا نام ہے جس کو سن کے ہی آدمی کو ایک قسم کا دکھ پیدا ہوتا ہے کہ یہ بیچارہ یتیم ہے، اس کا کوئی نہیں ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ تو یتیموں کی کفالت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہی انتظام رکھا ہے۔ ایک طرف سے وہ انڈیویجولی بھی لوگوں کو متاثر کرتا ہے، اور دوسری طرف سے وہ سوسائٹی کو بھی کہہ رہا ہے کہ آپ بھی کھڑے رہیں، آپ یتیموں پر کوئی ظلم نہیں ہونا چاہیے، ان پر کوئی جبر نہیں ہونا چاہیے، ان پر کوئی دباؤ نہیں ہونا چاہیے، وہ ایک آرام والی زندگی گزار سکیں، کیونکہ اب ان کا کوئی باپ نہیں ہے، کوئی ان کا دیکھنے والا نہیں ہے۔ تو آپ پر ذمہ داری ہے کہ آپ ان کی دیکھ بھال کریں، اور ان کے جو حقوق ہیں وہ ان حقوق کو پامال نہ ہونے دیں سوسائٹی میں۔ یہ سوسائٹی کا معاملہ ہے، سوسائٹی کو یہ دیکھنا پڑے گا۔ اور انڈیویجولی جہاں کسی گھر میں یتیم ہے تو وہاں ان کے لوگوں کو اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور یہ صرف قرآن کی بات نہیں ہے بلکہ حدیث، مختلف احادیث میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بہت زبردست اس کی تلقین کی ہے کہ یتیموں کے حقوق کا خیال رکھو اور ان کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کوشش کرو۔ کشمیر، ایک نام، ایک احساس جس کی پہچان دکھتی ہے پشمینہ کے دھاگوں کی باریکی میں، مہمان نوازی کے ذائقے میں، موسیقی کی کشش میں، اور ہر گھر کی ہر دیوار میں، جو بنے ہیں خیبر سیمنٹ سے، اور کشمیر کے ہر ذرے کی طرح دل سے۔ خیبر سیمنٹ، دل سے بنا۔ ظہور صاحب، آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ جب آپ نے اپنا یتیم ٹرسٹ جو ہے سٹارٹ کیا، تب ایسا کچھ تو ہوا ہوگا ضرور، جب آپ کے والد صاحب نے سٹارٹ کیا کچھ ایسا ہوا ہوگا جس سے آپ کو احساس ہوا ہوگا کہ اب مجھے یہ کام کرنا ہے، یا ان کو احساس ہوا ہوگا، ایسا کچھ ہوا تھا؟ ہاں، یہ ایک دلچسپ بات ہے کہ ٹاک زینگری صاحب ایک ریونیو آفیسر تھے۔ وہ مختلف علاقوں میں جاتے تھے سرکاری کام کے سلسلے میں۔ ایک دفعہ وہ کہیں جا رہے تھے کسی جگہ، اور وہاں ان کو سرکاری کام تھا، وہ کام نپٹا رہے تھے۔ تو اسی میں وہ کام کر کے واپس آ گئے، تو شام کے وقت وہاں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ گاؤں میں طریقہ یہ ہوتا تھا کہ لوگ شام کے وقت بیٹھتے تھے میدان میں یا دکان پر، بات چیت کرتے تھے کہ کون آ گیا تھا۔ تو اس میں وہ آپس میں بات کرنے لگے کہ یہ کون تھا، وہ کہہ رہے کہ یہ ٹاک صاحب تھے، بولتے ہیں بہت نیک آدمی ہے، نائب تحصیلدار ہے، بہت اچھا آدمی ہے۔ تو ایک یتیم بچہ وہاں یہ باتیں سن رہا تھا، تو اس نے پتہ کیا یہ کون ٹاک صاحب ہیں۔ تو انہوں نے ایک خط لکھا ٹاک صاحب کو کہ میں ایک یتیم بچہ ہوں، اور حال ہی میں نے میٹرک کا امتحان 1st ڈویژن پاس کیا ہے، میں آگے پڑھنا چاہتا ہوں، لیکن میری ماں مجھے
पढ़ने से रोक रही है। वो कह रही है कि अब तुम्हारे छोटे भाई बहन हैं, अब उनकी देखभाल करो, अब कुछ काम काज करो, कुछ मजदूरी करो। मैं नहीं चाहता हूँ मैं मजदूरी करूँ, मैं चाहता हूँ मैं पढ़ूँ, लेकिन उसके लिए मेरे पास पैसे नहीं, मेरी माँ के पास पैसे नहीं हैं। अगर आप मेहरबानी करें, आप अपनी जेब से मुझे कुछ पैसे दें ताकि मैं पढ़ाई शुरू कर सकूँ, ताकि मैं आगे बढ़ सकूँ। तो डॉक्टर साहब को जब ये ख़त मिला तो आमतौर पर तो उस बच्चे ने ये सोचकर ख़त लिखा होगा कि मेरे दिल का बोझ इस तरह से हल्का हो गया। तो उसको ये पता नहीं थी कि जिसको वो ख़त लिख रहा है वो इसको आसानी से लेने वाला नहीं है। वो फ़ौरन डॉक्टर साहब उठे, वो गए वहाँ और उनको पता किया कहाँ पर ये रहता है। उनकी माँ से मिले तो बताया क्यों इसको रोकते हो पढ़ने से, अगर इसकी चाहत है कि वो पढ़े आगे तो उसको पढ़ने दो। उसने कहा मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कैसे पढ़ाऊँगी, और घर में कोई आमदनी का ज़रिया भी नहीं है, मैं क्या करूँगी। उसने कहा ठीक है, मैं जेब में से इसके कुछ वो पैसे दूंगा जो इसकी तालीम पर खर्चा आएगा, मैं वो दूंगा, लेकिन इसको रोको मत। उसने कहा ठीक है, अगर आप वो खर्चा उठा सकते हैं तो कोई परवाह नहीं। अब उस बच्चे को बोलो बेटा तुम्हें तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। उसने कहा जनाब मैं मेहनत करूँगा और कोशिश करूँगा कि मैं उस वक्त PUC हुआ करता था, PUC में मैं फर्स्ट डिवीज़न लाऊँ। उसने कहा ठीक है, अगर ऐसा करोगे तो मैं आइंदा भी तुम्हें फिर मदद करूँगा। तो उस बच्चे ने PUC किया, फर्स्ट डिवीज़न में पास हो गया, और फिर TDC फर्स्ट में आ गया, वो पैरामेडिकल में, वहाँ भी वो फर्स्ट डिवीज़न में, वो सीधा डॉक्टर बन गया। उस वक्त कोई टेस्ट्स नहीं हुआ करते थे, कोई एंट्रेंस नहीं हुआ करता था, सिर्फ मार्क्स की बुनियाद पर लेते थे। तो ये बच्चा डॉक्टर बन गया। अब डॉक्टर साहब को ये ख्याल आ गया कि ये बच्चा, इसने मुझे ढूंढा, उसने मेरे साथ राब्ता किया, तो मैंने इसको उठाया, उसको पढ़ाया, ये ऐसा बच्चा बन गया, ये डॉक्टर बन गया। तो ऐसे तो हमारे बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनका टैलेंट खाक में मिल रहा होगा, क्यों ना मैं इसके लिए कोई काम करूं। तो यही वजह बनी कि उन्होंने फिर जम्मू कश्मीर यतीम ट्रस्ट की बुनियाद डाली। तो ये स्टार्ट हुआ था इससे, एक बच्चे ने एक खत लिखा था, एक लेटर लिखी थी, और वो एक मतलब आप मानो एक स्पार्क लगी तब, हाँ। और धीरे 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 ये एक इतना बड़ा फाउंडेशन जो है वो बन गई। बिल्कुल ठीक। आप हमें बता सकते हैं कि सिर्फ यतीमों के लिए आपकी रहबरी नहीं करते, उसके अलावा भी आप कई सारे मुहताजों की रहबरी करते हैं। आप बता सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में, या पर्टिकुलरली हम बात करें कश्मीर में, इतने कैसे लोग हैं या हालात क्या है अभी? 1990 की दहाई में यूनिसेफ ने एक सर्वे यहाँ किया था। तो उस सर्वे के मुताबिक उन्होंने कहा था यहाँ 2 लाख यतीम हैं, जो चाहे किसी वजह से भी यतीम हो गए हैं, 2 लाख उनकी तादाद। ये यूनिसेफ का सर्वे था। फिर हम सुनते रहे लोगों से जो यहाँ सर्वे कर रहे थे, उन्होंने कहा कम से कम, अगर कम से कम तादाद मानी जाए तो वो 1 लाख से ज़्यादा है, 1 लाख से कम नहीं है। इसी तरह बेवाओं के मतलब बताया गया कि 40,000 बेवाएँ हैं, जो मुख्तलिफ वजूहात की वजह से बीमारियाँ होती हैं। अब बीमारी नॉर्मल डेथ से भी हो जाती हैं, बीमारियों से भी हो जाती हैं, एक्सीडेंट्स भी हो जाती हैं, दूसरे कोई वजूहात होते हैं। तो ये इतनी बड़ी तादाद है जो इस वक्त हमारे समाज में है, और जिनकी जिम्मेदारी हमारे कंधों के ऊपर आ गई है। अभी क्या होता है, अगर हम अभी के ऑर्फनेज की बात करें तो या कोई बच्चा यतीम हो जाता है तो उसको डायरेक्ट भेजा जाता है ऑर्फनेज, या हो सकता है कि कोई लोग उसका कुछ लोग ख्याल रखे, या चाचा होता है या मामा होता है वो रख सकता है ख्याल, लेकिन उसको डायरेक्टली भेज देते हैं ऑर्फनेज। क्या जम्मू कश्मीर यतीम ट्रस्ट ऐसे लोगों की सरपरस्ती करता है, या उनको वहीं पे घर तक ही जो उनको मुहैया होती है चीज़ें वो पहुंचाता है, या उनको डायरेक्ट ऑर्फनेज में लेता है? 2 सेट है हमारे पास इसकी जो इलाज के लिए। हमारे पास 13 यतीम खाने हैं। जम्मू कश्मीर यतीम ट्रस्ट ने 13 यतीम खाने मुख्तलिफ जगहों पर कायम किए हैं। अब यतीम खानों में जो तादाद होती है वो तो लिमिटेड होती है, कहीं 50 की तादाद है, कहीं 100 की तादाद है, कहीं 25 की तादाद है। तो ये उनकी कैपेसिटी वहाँ कम होती है, लिमिटेड कैपेसिटी होती है।
तो हम जो कम से कम तादाद जो इनकी है वो हम यतीम खानों में लेते हैं, जहाँ जितनी लिमिट, जहाँ स्पेस जितनी हो वहाँ हम उतनी लेते हैं। तो ये कोई 500 550 के करीब हमारे बच्चे हैं जो हमारी कफालत में हैं, मुख्तलिफ यतीम, इन 13 यतीम खानों में। 550 के करीब यतीम बच्चे हमारी कफालत में, लड़कियाँ भी हैं और लड़के भी हैं। ये सारे हमारे पास इस वक्त ज़ेर कफालत हैं। अब इसके अलावा जो बड़ी तादाद है इन बच्चियों की, उनके लिए क्या किया जाए? उनके लिए हम ये सोचते हैं कि उनको हम उनके घरों पर ही उनकी कफालत का इंतज़ाम करें। यानी उनकी माँ है, बड़ा भाई है या कोई रिश्तेदार है जो उनकी कफालत कर सके, जो उनकी खबरगिरी कर सके, क्योंकि हमारे पास तो इतनी जगह नहीं है कि हम हर एक को अपने यतीम खानों में ला सकें। उसके लिए तो सैकड़ों यतीम खानों की ज़रूरत होगी। तो जितने बच्चे घरों में रहते हैं और यतीम हैं और मुस्तहिक हैं, उनके लिए हम यही कोशिश करते हैं कि उनकी पढ़ाई कम से कम और उनके खाने पीने का इंतज़ाम उनके घरों पर हो। तो इसके सिलसिले में हम ये करते हैं कि उनके घरों में हैं खाने पीने की चीज़ों का इंतज़ाम करते हैं और उनकी तालीम और पढ़ाई के लिए हम उनको पैसा देते हैं जो उनके डायरेक्ट बैंक अकाउंट्स में चला जाता है। इस तरह से उनकी पढ़ाई भी मुतासिर नहीं होती और हमारे यतीम खानों पर बिला वजह बोझ भी नहीं बनता है। बिल्कुल सही बात है। आप बता सकते हैं कि किस क्लास से आप पढ़ाई का जो ज़िम्मा है वो लेते हैं और किस क्लास तक आप एक बच्चे को एक पढ़ाई का जो एनवायरनमेंट है वो दे सकते हैं? नॉर्मली हमारे पास तरीका ये है कि छोटी उम्र के बच्चों को यतीम खानों में लिया जाए, क्योंकि छोटी उम्र से जब यतीम बच्चा आता है हमारे पास तो उसकी पढ़ाई लिखाई और उसकी कफालत और उसकी तरबियत वो अच्छी तरह से हो सकती है। बड़ी उम्र का जब बच्चा आता है तो जाहिर है उसने कुछ उम्र का एक हिस्सा कहीं और लगाया होता है, तो वो तरबियत उसको हासिल नहीं होती है जो एक यतीम खाने में उसको ज़रूरी होती है। इसीलिए हम प्रेफर करते हैं, हम इसको तरजीह देते हैं कि छोटी उम्र का बच्चा हमारे पास आ जाए और उसकी तालीम तरबियत हम कर सकें। छोटा बच्चा ज़्यादा बेहतर तालीम और तरबियत पकड़ता है, उसको तरबियत ज़्यादा ठीक तरह से की जा सकती है और वो मोल्ड भी हो जाता है फ़ौरन। तो इस वजह से हम छोटी उम्र के बच्चों को लेते हैं, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है क्योंकि यतीम जब हो जाता है कोई बच्चा तो वो किसी भी एज में यतीम हो सकता है और उसके घर वाले फिर उस एज में ही उसको हमारे पास लाते हैं कि इसकी पढ़ाई का इंतज़ाम करो, इसकी कफालत का इंतज़ाम करो। तो उस तरह से वो आते हैं और मुख्तलिफ एज ग्रुप भी हमारे पास आते हैं, लेकिन प्रेफरेंस हमारी यही होती है कि छोटी उम्र से ही हमारे पास ये बच्चे आ जाएं। बिल्कुल सही। अब जब ये बच्चे बड़े हो जाते हैं, इनकी पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है लेकिन ये फिर भी यतीम रहते हैं, अब जब इनकी शादी की उम्र आ जाती है क्या आप उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं? हम अपने यतीम खानों में कम से कम 12 जमात तक इनको रखते हैं। 10वीं जमात में हम देखते हैं कि इस बच्चे की काबिलियत किस किस्म की है, क्या ये 11th और 12th में बेहतर पढ़ाई कर सकता है और कोई ट्रेनिंग की सीट निकाल सकता है। अगर 10th में ये पता चले कि ये बच्चा ऐसा है कि ये नीट क्वालिफाई कर सकता है, जेईई क्वालिफाई कर सकता है या इस किस्म के जो दूसरे प्रोग्राम होते हैं वो क्वालिफाई कर सकता है, तो हम उसको और 2 साल रखते हैं, 10, 11 और 12। तो 12 की एज में 12 साल की 12वीं जमात की एज में हम फिर उनको रुखसत करते हैं उनको घर जाने के लिए, और घर में उनकी जो पढ़ाई लिखाई होती है उसका इंतज़ाम भी हम करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम उनको छोड़ देते हैं, नहीं, हम ये इंश्योर करते हैं कि इस बच्चे की पढ़ाई लिखाई वो मुतासर न हो पाए। अब जब ये 12 जमात तक पहुंच गया तो ये 18 साल का हो गया और शरई तौर से वो अब यतीम नहीं रहा, वो बालिग है अब। तो
उसके घर में भी ज़रूरियात होती हैं, उसकी ज़रूरत होती है, उनके छोटे भाई बहन होते हैं, दूसरे लोग होते हैं, तो उसका भी एक फ़र्ज़ बनता है और एक ज़िम्मेदारी बनती है कि वो अब उस माहौल में फिर जाए और अपना जो हिस्सा है वो अदा करे। इसलिए हम उसको 12वीं जमात के बाद फिर घर भेज देते हैं। जहाँ तक बालिग बच्चों का ताल्लुक है, तो बालिग बच्चों के लिए हमने प्रोग्राम रखा हुआ है वेडिंग किट सिस्टम। तो वो ऐसा करते हैं कि जब जिस बच्ची की शादी की उम्र हो जाए और उसके घर वाले उसकी शादी करना चाहें, तो हम उसके लिए एक वेडिंग किट तैयार करते हैं। हाँ, वो दुल्हन का सामान जो होता है ना, पूरा सामान, वो हम उसको उस वेडिंग किट में देते हैं। एक ट्रंक होता है, उस ट्रंक में उसके कपड़े होते हैं, उसके मेकअप का सामान होता है, फेरन होता है, जो कपड़े उसको ज़रूरत होते हैं, स्वेटर होता है, शॉल होता है, और जो अंडरगारमेंट्स हैं वो होते हैं। ये सारी चीज़ें हम एक किट में उसको देते हैं ताकि ये दुल्हन बन सके, ताकि इसको इस वजह से परेशानी न हो। तो ये कोशिश हम करते हैं उसकी शादी भी इस तरह से मुमकिन हो सके, तो हम उसको छोड़ते नहीं हैं बल्कि उसके साथ साथ रहते हैं। माशाल्लाह। ज़हूर साहब, आप बता सकते हैं हमें कि आज तक एक अप्रॉक्सीमेट अमाउंट आप दीजिए नंबर्स का कि कितने लोगों की मदद आप लोगों ने की होगी? ये 52 साल हो गए हैं आज के दिन में, 52 साल, और 52 साल में हज़ारों की तादाद में ऐसे लोग हैं जो इससे मुस्तफ़ीद हुए हैं और उन्होंने मुख्तलिफ़ शोबों में नहायत अच्छी कारकर्दगी दिखाई। हमने एक DC को दिया कौम को, हमने एक DC भी दिया कौम को, वो DC रैंक तक पहुंच गया। हमने एक DIG को कौम को दिया जो DIG रैंक तक पहुंच गया। हमारे पास उसने पढ़ा लिखा, हमारे पास उसकी कफ़ालत हुई, फिर जा कर के वो DIG बना, वो DC भी बना। हमारे यहाँ से बहुत से ब्यूरोक्रेट्स निकले, बहुत से डॉक्टर निकले, बहुत से इंजीनियर्स निकले, बहुत से पॉलिटिशियंस निकले, बहुत से ब्यूरोक्रेट्स निकले, बहुत सारे लोग निकले जो ये काम करते रहे और सोसाइटी में अपना नाम उन्होंने रोशन किया। ऐसे सैकड़ों की तादाद में डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स और जो दूसरे ब्यूरोक्रेट्स हैं वो हमने कौम को दिए हैं और ये फ़ख्र की बात है, ये काबिल फ़ख्र बात है। हम इसको फ़ख्र की निगाह से देखते हैं। गो ये भी बात सही है कि जो हमारी तालीम और तरबियत के बाद इस बड़े ओहदे पर पहुंच गया, वो फिर हमारी तरफ नज़र नहीं मारता है, वो नहीं आता है हमारे पास, लेकिन हम अपना हिस्सा जो है वो अदा करते रहते हैं। आपको तो अल्लाह ताला के पास जवाब। हाँ। रमज़ान के हवाले से बात करते हैं। इस रमज़ान में आपने कितने प्रोग्राम्स किए होल्ड, या कितने सारे लोगों के लिए ऐसे, जैसे आज भी एक प्रोग्राम था फूड किट्स के हवाले से आप लोगों ने होल्ड किए हैं जिससे लोगों की मदद हुई है? हमारे प्रोग्राम जो हैं वो सारे मुकर्रर प्रोग्राम हैं। ऐसा नहीं है कि हम अलल टप हम काम करते हैं, नहीं, प्रोग्राम बने हुए हैं, उनके मुताबिक हम काम करते हैं। हमारा पहला प्रोग्राम है ऑर्फनेजेस का। ऑर्फनेजेस हम चलाते हैं, 13 ऑर्फनेजेस हमारे हैं, वो चलाते हैं हम। हमारे पास प्रोग्राम है डाइटरी किट्स का। हम हर महीने बेवा विडो हेडेड फैमिलीज़ जो हैं उनमें हम राशन पहुंचाते हैं, जिसमें चावल से लेकर दिया सिलाई तक जितनी भी चीज़ें किचन में उनको ज़रूरत होती हैं वो हम उनको देते हैं हर महीने, और ये सिलसिला जारी रहता है। और न सिर्फ ये कि मरकज़ी दफ्तर ये काम करता है, बल्कि हमारे जो यूनिट्स हैं वो भी ये सारा काम करते हैं। इस तरह से हज़ारों की तादाद में जो हमारी माएँ बहनी और बेटियाँ हैं जो बेवा हुई होती हैं, उनको इस तरह से फ़ायदा मिलता है। हम एजुकेशनल एड बच्चों को देते हैं जो घरों में हैं। जैसे मैंने अर्ज़ किया, जो घरों में हैं, घर में बैठे हैं, घर से बाहर नहीं निकले हैं, वहाँ तालीम हासिल कर रहे हैं, उनको हम नकद पैसा उनके घरों में पहुँचाते हैं। हमने क्राफ्ट सेंटर्स मुख्तलिफ जगह पर खोले हैं जहाँ पर जवान बेवाओं और यतीम बच्चियों, बालिग यतीम बच्चियों को हम क्राफ्ट के सेंटर ट्रेनिंग देते हैं। हमारे पास इसी तरह से जो आफाती समावे होते हैं, नागानी आफात होते हैं, उनमें मुतासर लोग होते हैं, उनको मदद हम करते हैं। हम इस तरह से वेडिंग किट्स, जैसा मैंने अर्ज़ किया, वेडिंग किट्स देते हैं
ताकि शादी के वक्त इन बच्चों को वो ज़रूरियात मिले जो इनको ज़रूरी होती है, जिसके बगैर उनकी शादी मुमकिन नहीं होती है। तो ये प्रोग्राम है जो सारे के सारे हमारे मुकर्रर प्रोग्राम है, हम ये करते रहते हैं, पूरे साल चलाते रहते हैं। हम 400 यतीम और मिस्कीन बच्चों की शादी करते हैं हर साल। 400 यतीम बच्चों की शादी करते हैं और ये बहुत बड़ा प्रोग्राम है जिसमें लाखों रुपया खर्चा आता है। 50-60 लाख के करीब, 60 लाख रुपये के करीब हमारा इसमें खर्चा आता है और ये हम सारे के साल के साल ये हमारा चालू रहता है। माशाल्लाह। मेरा आखिरी सवाल रहेगा, क्योंकि जब ये सारी बातें आती है फिर बात आती है डोनेशंस की, हाँ कि पैसा जो है वो आता कहाँ से है जी। क्योंकि पहले फॉरेन फंड्स भी आते थे, क्योंकि अब वो बंद किए गए हैं। तो आप बता सकते हैं कि इस सब का जो डोनेशन है या इस सब का जो पैसा है वो आपके इदारे में, ऑब्वियस सी बात है कि पब्लिक डोनेशंस होते हैं, उसके अलावा क्या कोई और गैर सरकारी या सरकारी मदद आपको मिलती है? कोई सरकारी, कोई गैर सरकारी, कोई बैरूनी, कोई किसी तरफ से कोई मदद हमें नहीं मिल रही है। हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ के असहाब सरवत जो हैं, खुशहाल लोग जो हैं, हमारा खुशहाल तबका जो है वो हमें अपनी ज़कात, अपने सदका देता है, उसकी वजह से हम ये काम चला रहे हैं। और हमारे पास फंड्स की कमी हो गई थी जब फॉरेन एड हमारा बंद हो गया था, तब से बहुत कमी वाक़ा हो गई, वरना हम और भी बहुत सारे प्रोग्राम चलाते थे जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा यतीम बच्चों और बेवाओं की मदद करते थे। लेकिन वो सारे मदद जो हैं वो सारे बंद हो गए हैं। अब सिर्फ और सिर्फ हमारी डोनेशंस पर तकिया है जो लोग देते हैं, माह रमज़ान में देते हैं। और मैं यहाँ इस बात को कहना चाहता हूँ, वाशगाफ करना चाहता हूँ कि अगर हमारी सारी सोसाइटी ज़कात दे, जो ज़कात देने वाले लोग हैं, जो असाबे निसाब हैं, साहिब निसाब वो लोग होते हैं जिन पर फ़र्ज़ है कि वो ज़कात दे, 52.5 तोला चांदी या 7.5 तोला सोना जिनके पास हो या इतना रुपया उनके पास हो, अगर वो सारे लोग ज़कात दे तो समाज में कोई गरीब नहीं रहेगा, कोई नहीं रहेगा। लेकिन तजुर्बा ये बताता है कि सिर्फ 10% लोग जो हैं वो ज़कात देते हैं। सिर्फ 100% में से सिर्फ 10% लोग ज़कात देते हैं और 10% में से भी निस्फ से ज़्यादा वो तादाद है जो अपनी मनमानी तरीके से ज़कात देते हैं, जितना मर्जी आ गया उतना दे दिया। शरई तौर पे नहीं, शरई तौर पर तो हिसाब लगाना है, मेरे पास कितनी आमदनी है और जो आमदनी है उसकी ज़कात देनी 2.5% के हिसाब से। ये तो सदकात वाजिबा हैं, ये ज़रूरी देने हैं, इसके बगैर चारा नहीं है। क्योंकि जो ज़कात नहीं देगा, अल्लाह ने कुरान में कहा है कि उसका माल पाक करता है। हाँ, ये पाक करने के लिए होता है। जो ज़कात नहीं देता है, अल्लाह कहता है कि उसका जो माल है वो कल आग पर तपाया जाएगा, फिर उससे उसके पेशानियों को, उनकी करवटों को, उनकी पीठों को दागा जाएगा। इस तरह से ये कर रहे। एक हदीस में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो लोग ज़कात नहीं देते बल्कि माल को सींत कर रखते हैं, कल वो माल उनका जो है वो एक गंजे सांप की सूरत में आएगा और उसको डसता रहेगा। तो ये ज़कात देना तो फ़र्ज़ है हर उस साहिब निसाब पर जिसको कुरान ने साहिब निसाब मुकर्रर कर दिया। फिर ये जब दी जाती है तब उससे पाक होता है वो, तो उसका माल भी इस तरह से पाक होता है। अब ये सवाल यहाँ पर ज़रूर उठेगा कि अच्छा देना किसको है, ये ज़कात देना किसको है? ये देने के लिए जो है कुरान ने खुद बताया किसको देना है। ये नहीं, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नहीं ये इख्तियार दिया, बल्कि अल्लाह ने खुद ये बताया किसको देना है। उनमें सबसे ज़्यादा जो अव्वलीन जो मुस्तहिकीन हैं वो लिल फ़ुक़राई वल मसाकीन, ये पहले हैं, बाद में आते हैं दूसरे लोग, फी सबीलिल्लाह और ये और वो बाद में आ जाता है, लेकिन सबसे पहले आता है लिल फ़ुक़राई वल मसाकीन।
तो उसमें कौन होता है? यही यतीम, यही बेवाई, यही जो लोग नखैस हुए होते हैं, ये वही लोग हैं जिनके पास कोई कुछ नहीं होता है और जिनकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर आयद है। अगर हम ज़कात पूरी तरह से दें तो कोई गरीब नहीं, तो कोई गरीब नहीं। ये कुरानी दावा है, ये खुदाई दावा है, ये खुदाई निज़ाम है। आप ज़कात दो, पूरे माशरे में इसकी सी भलाई पहुंच जाएगी, कोई गरीब नहीं रहेगा। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि हम ज़कात नहीं देते हैं, ज़कात थोड़ी सी देते हैं, नतीजा ये निकलता है कि समाज में गुर्बत है, परेशानी है, गुर्बत से दो चार हो जाती है। कोई ऐसी बात, कोई आखिर में कोई ऐसी बात जो हमारे नाज़रीन तक आप पहुंचाना चाहते हैं? मेरी गुजारिश होगी हमारे नाज़रीन से कि जहाँ कहीं कोई यतीम, मिस्कीन, मोहताज हो, उसकी खबर हमें दें। ये ज़रूरी है, हमें पता चलना चाहिए और इसकी वेरिफिकेशन करके दें हमें कि वाकई ये मोहताज है, ये गरीब है, मिस्कीन है, ये यतीम है। तो इसकी खबर हमें दें। जहाँ ये खबर दें वहाँ ये भी ख्याल रखें कि अपनी ज़कात हमें दें, अपनी सदक़ात हमें दें। हम पिछले 1972 से, यानी आज के दिन में 52 साल हो गए, हम 52 साल से इस काम को सरअंजाम दे रहे हैं। और अहम बात यह है कि हम में से कोई भी कोई पैसा, कोई तनख्वाह, कोई मुआवजा नहीं लेता है। हम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए ये काम करते हैं। हमने कहा कि हमने अपनी ज़िंदगी गुजारी, जैसे तैसी ज़िंदगी गुजारी, अब जो बाकी ज़िंदगी बची है उसको हम खुदा के बंदों की खिदमत में खर्च करें। तो हम वॉलंटरीली ये काम करते हैं, लिल्लाह फिल्लाह ये काम करते हैं। और लोगों की ज़िम्मेदारी है कि वो हमको देखें, हमारे पास आ जाएं, परख करें, जांच करें क्या ये सही कहते हैं, क्या सचमुच ये लिल्लाह फिल्लाह काम करते हैं। अगर हम ऐसा ही करते हैं, लिल्लाह फिल्लाह काम करते हैं, फिर जिम्मेदारी आपकी है, आप हमें ज़कात दें, आप अपनी ज़कात हमें दें, पूरी की पूरी ज़कात हमें दें। शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको और ज़्यादा तरक्की दे। हमारे स्पॉन्सर्स की तरफ से एक छोटा सा तोहफ़ा आप कबूल करें। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला आपको और बरकत दे। बहुत शुक्रिया।